स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लाइट। तो फर्स्ट, व्हाट इज लाइट? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोपेगेशन, नेचर and behavior of light, and that is called a optics. So optics is the study of propagation of light. Propagation means traveling of light. How the light is travel, light कैसे travel करती है, light की nature क्या है, light का behavior क्या है. So इस study को हम क्या कहते हैं? Optics. So first, light is a form of energy. Light क्या है? Light एक energy है which enables us to see, जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है. विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख सकते. सो ये कैसे हम देखते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट है क्या. सो लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स. सो लाइट किसकी बनी हुई है? फोटोन्स की. लाइट इज ए डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. हमने अभी कहा लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है. एंड लाइट के जो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन्स. क्या कहते हैं? फोटोन्स. Photons has momentum. Momentum is a quantity of motion possessed by a body. It means light also has a quantity of motion but have no mass. Light has zero mass. Note down this. Student, light has energy. Light has energy but have no mass. So due to that energy, light possess momentum. Light क्या possess करता है? Momentum. And also in vacuum, light travels with speed 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड. बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की, बहुत ज्यादा स्पीड है. एंड सबसे फास्टेस्ट लाइट किस में ट्रेवल करती है? वैक्यूम में. किस में ट्रेवल करती है? वैक्यूम में. स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द मीडिया. फॉर एग्जांपल, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, एल्कोहल में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, एंड सबसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? वैक्यूम में. सो हमें यह भी पता चल गया कि लाइट आल्सो ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद स्पीड 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड और 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड. सो कितनी स्पीड है स्टूडेंट्स लाइट की? 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड. एंड फास्टेस्ट इन वैक्यूम. Fastest in vacuum. So this is a very important question. Light travels fastest in vacuum and light has momentum, have no mass, have energy, and that packets of energy is called photons. And study of light, its nature, its behavior, its propagation, that study is called optics. So light propagates or travel in straight line. So students, light कैसे travel करती है? straight line में. So that's why light has rectilinear propagation. So light की नेचर क्या है ट्रेवल करने की? रेक्टिलिनियर. क्या नेचर है? रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर मींस द मोशन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. सो दैट्स व्हाई नेचर ऑफ मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर propagation. सो स्टूडेंट्स, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. एंड उस मोशन को क्या कहते हैं? टेक्निकल नेम क्या है? रेक्टिलिनियर propagation. And speed of light is maximum in vacuum, and speed of light changes with the change of medium. If the medium changes, then speed of light changes. It means speed of light is different medium. And fastest travel in vacuum with speed 3 into 10 is to power 8 meter per second. And light is made up of discrete packets of energy called photons, but light has no mass. So this is the basic fundamentals of light. Now the path along which light energy travels, जिस पाथ में लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं
उस पाथ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रे। क्या बोलते हैं? रे। रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जस्ट show in this arrow, this is a straight line arrow, this is a straight line arrow and shows that this is the path of the light. So light is represented by a straight line with an arrow to show its direction of motion. So ये arrow क्या show कर रहा है? Direction of motion of light. So light की direction किस तरफ है ये arrow डिसाइड करेगा. So this arrow shows that direction of motion of light, and light travels in all directions. See in this diagram, for example, this is the source of light. This is the source of light, and these are the light rays. These are the light rays, and these light rays travels in all directions. These light rays travel in all directions. So light travel in straight line, and that straight line is shown by arrow, and arrow क्या show कर रहा है? Its direction of motion. And next, a beam of light. What is beam of light? Beam of light is a bundle of light rays. So light rays के bundle को हम क्या बोलेंगे? Beam of light. क्या बोलेंगे? Beam of light. For example, these are the bundles of 3 light rays. These are also the bundles of 3 light rays. These are also the bundle of 3 light rays, and that complete bundle is called a beam of light, and complete bundle of light rays is called beam of light. For example, all the light rays travel in parallel directions, so that type of beam is called parallel beam, and in this case all light rays are converges to a some point, so this type of beam is called converging beam, and in this case all light rays are diverging from some point, and these bundle of light rays is called diverging beams. This is a parallel beam because all light rays are travel in parallel direction, and these light rays are converges to a some point, that is called a converging beam, and these light rays are diverging. These light rays are diverging from some light source, and this is a diverging beam. And next, what is the nature of light? The nature of light is a transverse. The nature of light is a transverse. So light is a transverse wave. First of all, हमें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए लाइट क्या है. लाइट एक वेव है. लाइट एक वेव है और इसकी नेचर क्या है? ट्रांसवर्स. So transverse mean the light particles are travel perpendicular to the path of propagation. Light vectors कैसे travel कर रहे हैं? Perpendicular to the path of propagation. For example, light travels along this direction, and light vectors are vibrated along the direction of perpendicular direction of propagation of light, and this type of motion is called transverse motion. So light is a transverse wave. So light is a transverse wave. And next is light is an electromagnetic radiation. Light students क्या है? Light is a part of electromagnetic radiation which possess both dual character. Dual character, which dual character? Light possess wave character as well as particle character. So students, this one is very much important point. Light possess dual character. Light possess two types of properties. One is wave property and other is particle property, because light is an electromagnetic radiations, and electromagnetic radiations possess two types of characters, wave character as well as particle character. And next is, this is a important MCQs question. Sun's light reaches to earth in 8 minutes and 19 seconds. जो
सन की लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, और 499 सेकेंड्स। एंड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून, स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है। मून सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मून अर्थ के बहुत पास है, इसलिए light reflected from moon and reaches to earth in only 1.28 seconds. In 1.28 seconds. So light reaches to earth, sun's light reaches to earth in 8 minutes and 19 seconds, and light reflected from moon and reaches to earth in 1.28 seconds. These are two important questions for MCQs. And also this one is also very much important. Nature of light is transverse and it is a part of electromagnetic radiation and possess two types of character, particle as well as wave character. And according to current theories, no material particle can travel at a speed greater than speed of light. किसी भी material particle की speed light की speed से ज्यादा अभी तक नहीं हुई है। कोई थ्योरी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। एंड स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And nature of light is transverse. Transverse wave means light particles are vibrated perpendicular to the direction of propagation, and light is a part of electromagnetic radiation which possess two types of character, wave character as well as particle character. And sunlight को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 minutes and 19 seconds, approximately 499 seconds. And लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून, मून से लाइट को रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगता है? अर्थ तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स are those objects which emit its own light. It means luminous objects के पास अपनी खुद की लाइट होती है। जो वो लाइट एमिट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल सन, सन के पास अपनी खुद की लाइट है, सो सन इज ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ग्लो वॉर्म, बर्निंग ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इन सब की क्या अपनी खुद की लाइट है जो वो लाइट एमिट करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और दो ऑब्जेक्ट्स के पास जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है लेकिन वो कैसे विजिबल होते हैं? तो तभी विजिबल होते हैं जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में डेस्क है, वॉल्स हैं, ये हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इनके ऊपर लाइट फॉल करती है, लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है और हमें वो ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सिर्फ तभी विजिबल होते हैं जब लाइट उनके ऊपर फॉल होती है। फॉर एग्जांपल मून। स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मून इज ए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक भेजता है। एंड अर्थ इज आल्सो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अर्थ की भी अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है। टेबल, पेपर, वॉल्स एटसेट्रा, दीज आर ऑल नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट है और वो लाइट एमिट करते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। ए लाइन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और इमेज टू योर आईज। हमारी आंखों तक लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है या लाइट
ट्रेवल कर रही है हमारी आंखों तक किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, सो उस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज सोर्स ऑफ लाइट एंड यहां से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है और हमारी आंखों तक आ रही है, एंड दिस इज कॉल्ड ए लाइन ऑफ साइट। ये क्या स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट, ए लाइन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस वन इज ऑब्जेक्ट और इमेज, और लाइट कहां पहुंच रही है, हमारी आईज तक पहुंच रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट और रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अलो मोस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से मटेरियल हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 90% लाइट पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास में ऑलमोस्ट 80 to 90% लाइट पास हो जाती है। वाटर इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट material, air is also a transparent material, almost 80 to 90% light इन मटेरियल से पास हो जाती है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज विच अलो मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। उन मटेरियल से, जिन मटेरियल से लाइट 80 to 90% पास हो जाती है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Next is translucent materials. Allow only a part of light to pass through it. It means translucent materials कुछ ही पार्ट को लाइट को पास होने देते हैं, मतलब अराउंड 30 to 40% और 10, 20, 30% लाइट को पास होने देते हैं, एंड बाकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ओनली ए सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, लाइट का कुछ पार्ट पास होता है, बाकी या तो रिफ्लेक्ट हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑयल पेपर, ऑयल पेपर में अगर आप लाइट फॉल करो तो क्या होगा, आपको कुछ लाइट पेपर के दूसरी तरफ नजर आएगी, लेकिन जो लाइट आप पास कर रहे हो वो लाइट आपको दूसरी तरफ पेपर से नजर नहीं आएगी, बिकॉज ऑयल पेपर ने कुछ लाइट को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और कुछ लाइट को क्या कर लिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। सो दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, और जो ऑलमोस्ट लाइट को पास होने देते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट इज ओपेक मटेरियल्स। डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू इट, जो लाइट को पास होने ही नहीं देते, मतलब ऑलमोस्ट 95 to 99% लाइट को क्या कर देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनके अंदर लाइट पास ही नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट, या तो वो कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देंगे लाइट को, और या कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो भी लाइट उन ओपेक मटेरियल्स के ऊपर फॉल होगी, या तो वो कंप्लीटली उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, या लाइट या वो मटेरियल उस लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे। दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। सो अगेन briefly study transparent, allow most of light to pass through them, it means 90 to 95% लाइट इन मटेरियल से पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट, ओनली 10 to 20% लाइट ही पास होती है, बाकी या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ओपेक मटेरियल्स में क्या है, लाइट पास ही नहीं होती, कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉल है, अगर लाइट फॉल होगी वॉल के ऊपर आपके घर में, तो दूसरी तरफ आपको वो लाइट नजर नहीं आएगी, क्योंकि वॉल ने क्या किया है, कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स है, डेस्क है, स्टोन है, रबर है, ट्रीज है, वुड है, मेटल है, मिरर है, ये सारे के सारे मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स हैं, ओपेक मटेरियल्स। और ये लाइट को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज मैटर क्लासिफाइड बाय बिहेवियर व्हेन लाइट स्ट्राइक्स। सो हमने अभी भी क्या पढ़ा, मैटर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है, लाइट ऑलमोस्ट क्या हो गई है,
ट्रांसमिट हो गई है. एंड इफेक्टिव विजिबिलिटी सी थ्रू. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ग्लास. ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बिकॉज इससे लाइट क्या हो रही है, 90 to 95% ट्रांसमिट हो रही है. इफेक्टिव विजिबिलिटी, क्या विजिबिलिटी बढ़ी, सी थ्रू, हम देख पाते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट. सम पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट एंड सम पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब, नॉट क्लियर. फॉर एग्जाम्पल योर प्लास्टिक ग्लास. दिस वन इज glass and this one is for example your plastic glass. And next is opaque. opaque हमने क्या पढ़ा, 90 to 95% ऑलमोस्ट लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब. लाइट पास होती नहीं है इन मटेरियल से, सारी की सारी लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड इफेक्ट ऑन विजिबिलिटी कैन नॉट सी थ्रू, हम नहीं देख पाएंगे. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ transparent, translucent and opaque materials. Next, how does light travel? हमने अभी पढ़ा light travels in a straight line. Light travels in a straight line and motion of straight line is called rectilinear motion. So light has a rectilinear propagation. So nature क्या light की, हम वो भी पढ़ी, ट्रांसफर्स नेचर है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो अभी देखते हैं हम हाउ डज लाइट ट्रेवल. तो हमने पढ़ी लिया है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द लाइट सोर्स. दिस वन इज लाइट सोर्स एंड दिस वन इज आवर आई एंड दिस वन इज ए ऑब्जेक्ट. अगेन दिस वन इज ए लाइट सोर्स, दिस वन इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट reflect, transmit or absorb, and this one is our eye. For example, now this object is a opaque object. Opaque object में भी क्या पढ़ा, some light is absorbed and rest reflects it. Light transmit नहीं हो पाती opaque objects में. ये देखिए तो क्या हुआ, लाइट आई लाइट सोर्स से, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने फॉल किया एंड लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. सो लाइट इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाई. 5 to 10% लाइट एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन 90 to 95% लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. इट मींस ओपेक ऑब्जेक्ट्स reflect the incident light from light source. For example, now object is transparent. So in transparent object, light rays passes through it easily. ये देखिए स्टूडेंट्स, अब लाइट रे क्या कर गई है, बॉडी से पास कर गई है. बिकॉज अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. पहले हमने क्या देखा था, ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा था, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या हमने देखा, लाइट इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रांसमिट हो गई है. ध्यान से देखिए. Now, if object is translucent, it means some light can pass through, but rest of the light will be reflected. So, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट लाइट का उसके अंदर से पास हो गया, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. Now next is how do we see color? हम कलर्स को कैसे देखते हैं. दिस इज लाइट सोर्स आई, अगेन दिस इज द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमको पता होना चाहिए white light consists of 7 colors. White light consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow,
ऑरेंज, रेड। अगर हम इन 7 कलर्स को मिक्स कर दें तो कौन सी लाइट बनेगी स्टूडेंट्स? व्हाइट लाइट। कौन सी बनेगी? सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, नेमली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. So light from most light sources looks white but actually contains all the colors of spectrum. वो हमने अभी देख ही लिया. लाइट white light consists of 7 colors. So if an object looks blue, it is absorbing every color except blue. Students, हमें फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ ब्लू कलर. ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है और हमें ब्लू कलर नजर आ रहा है. इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट ने ब्लू कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है. और ब्लू कलर को क्या कर दिया है? रिफ्लेक्ट कर दिया है. ब्लू कलर को क्या कर दिया है? रिफ्लेक्ट कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट लाइट है एंड व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 colors and this object absorb all colors except blue and blue color इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आई की तरफ आ रहा है और हमें क्या लग रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट का कलर क्या है? ब्लू. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट लुक्स ऑरेंज. इट मीन्स this is a white light. White light consists of 7 colors and this object absorb all colors except orange. So students, इसमें मैं क्या सीखा कि जो कलर रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट से हमारी आई की तरफ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वही कलर हमें नजर आता है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू सी द कलर. Now next is, if the object looks red. Students, अगर ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो इट मीन्स ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड एक्सेप्ट रेड. रेड कलर इस ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आई की तरफ पहुंच रहा है. सो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ डू वी सी कलर्स. नाउ नेक्स्ट इज रेज ऑफ लाइट. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लाइट इज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड दैट पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट रे. क्या पढ़ेंगे? सो इनकमिंग रे, दिस इज फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे. इनकमिंग रे फ्रॉम लाइट सोर्स दैट स्ट्राइक ए सरफेस. फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the light source object. This is the light source object and this object emit light and this light incident over this surface and that incoming ray of light is called incident ray. This is the incident ray that strikes over the surface of reflecting body. That ray is called incident ray. Now next is reflected ray. Ray that bounce off a reflective surface. For example, this is the reflective surface and ray bounce off back to the same medium and strikes our eye. So this is the incident ray. Incident ray falls over the reflective surface and light is reflected from this surface and reaches to our eye and this ray is called reflected ray. This ray is called reflected ray. This is the incident ray, this is the reflected ray. So reflected ray is produced when incident rays falls over the reflective surface. So यहां पे आपको आई, आर और एक नॉर्मल भी नजर आ रहा होगा. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट रे स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ 2 different मीडिया,
such as air and glass, and part of light is turned back into the same medium. For example, air, light, this is a light source, air से light source से light emit हुई. For example, this is a reflective surface. This incident light after falls over the surface and again bounce back to the same medium. Medium is air. एयर से ट्रेवल हुई थी और वापस एयर में ही वापस आ गई. दिस टाइप ऑफ study is called reflection of light. This is called reflection of light. So when light rays strike the boundary of two different media such as air and glass, and light air से ट्रेवल हुई थी, वापस अपने सेम मीडियम एयर में वापस आ गई है, एंड दिस फेनोमेना हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज द इंसिडेंट लाइट and this is the reflected light. So incident light and reflected light both are in the same medium. If the incident ray and reflected ray both are in the same medium, then this phenomenon is called reflection of light. Now next is laws of reflection. Normal, हमने अभी पढ़ा था नॉर्मल. सॉरी स्टूडेंट पढ़ा नहीं था, देखा था. अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मल. So normal is a line perpendicular to the surface where the reflection occurs. For example, this is the surface where the reflection occurs, and this is the perpendicular drawn over this surface. This is the perpendicular drawn over this surface. This perpendicular drawn over this surface is called normal. Is called normal. So normal is a line perpendicular to the surface where reflection occurs. So this is the surface, this is the incident ray, this is the reflected ray that reaches our eye, and this perpendicular to the reflecting surface, this is a line which is perpendicular to the reflecting surface. That perpendicular line is called normal, is called normal. So next is angle of incidence. It is represented by I. It is represented by I. So angle between incident ray and normal of the surface, that angle is called angle of incidence. For example, students, this is the incident ray and this is the normal, and this is the angle between incident ray and normal. This angle is called angle of incidence. And similarly, this is the reflected ray. This is the reflected ray, and this is the angle between normal of surface and reflected ray. This angle is called angle of reflection. This angle is called angle of reflection. So next is angle of incidence I is equal to angle of reflection R. So angle of incidence is represented by I and angle of reflection is represented by I R, and law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the important law of reflection. So next is at the point of incidence. जहाँ पे ये incident ray आ रही है, ये ray आई, this one is the point. At the point of incident, the incident ray normal to the surface and reflected ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. This is the incident ray, this is the normal, and this is the reflected ray. All these three things, incident ray, normal and reflected ray, all lie in the same plane. So what did it means? अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से टकरा के वापिस किसी पर्सन की
आई के ऊपर फॉल हुई है, तो सेम प्लेन का मतलब है ये नहीं लाइट कहीं और चली जाएगी, लाइट उसी प्लेन में रहेगी जिस प्लेन में लाइट आ रही थी, जिस प्लेन से लाइट आ रही थी। ये नहीं कि लाइट एक कमरे से इंसिडेंट हुई है और वो दूसरे कमरे में भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane. So how does light reflect? हमें पता है light travel in straight line. So straight line की वजह से ये incidents and reflections हो रही हैं. See the animation? This is the reflecting surface and this is the source of light. So this is the incident ray and this is the reflected ray and this is the reflecting surface. This is the source of light जो light produce कर रहा है. So incident ray, reflected ray and this is the reflecting surface. This is the normal. This one is normal. Normal is perpendicular to surface. Normal is perpendicular to surface. So angle between surface and normal is 90 degree. Is 90 degree. Now this is angle of incidence because this is the incident ray. So angle between incident ray and normal is called angle of incidence, is called angle of incidence. And this is the angle of reflection because this is the reflected ray and this is the normal and this is the angle between normal and reflected ray. This is called angle of reflection. और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे and reflected ray or lie in the same plane. So इस same plane का रीजन क्या है? Light travel in a straight line. Light travel in a straight line. Light has a rectilinear propagation. So due to rectilinear propagation ये एंगल, ये इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शंस हो रही हैं. अदरवाइज ये रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी. रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी तो वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे. सो रिफ्लेक्शंस का मेन रीजन क्या है? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. सो लाइट कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड इन स्ट्रेट लाइंस. अगर वो इंसिडेंट लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी बिकॉज नेचर ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ओनली इन स्ट्रेट लाइंस. For example, this is a source of light, this is an object. So light is incident from this source of light and this is the reflected light. Again this reflected light incident over this reflecting surface and again reflected to the this object. So इस object को हम कैसे देख पा रहे हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से. कैसे देख पा रहे हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से. यहां पे क्या हो रही है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही हैं. यहां भी रिफ्लेक्शन हुई एंड यहां भी रिफ्लेक्शन हुई क्योंकि यहां पे कितनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस हैं? देयर आर 2 रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस एंड हमने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लिया है. क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल नहीं करती तो यहां से इंसिडेंट होनी थी. फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्ट तो हो गई लेकिन ये कहीं अगर और चली जाती तो ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आता. सो हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं वी आर सी द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग. किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. अब नेक्स्ट क्या है? हाउ डज लाइट फॉर्म शेडोज? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ऑब्जेक्ट, opaque object. Opaque objects means
Light travel in straight lines, radiating out from the light source. This is a light source that produces light energy, and light rays travel in straight lines. If rays are blocked by an opaque object, for example, इस opaque object means light क्या करती है, opaque objects क्या करते हैं, लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं या कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइट रे से टकरा के यहां पे आ गई, लेकिन यहां नहीं जा सकी क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को ट्रांसमिट नहीं करने देगा. सो यहां पे क्या बन गई, ये देखिए पीछे इसकी शैडो बन गई. क्या बन गई, शैडो बन गई. दिस इज द शैडो ऑफ दिस opaque object. So if rays are blocked by an opaque object, a shadow forms where the light cannot reach. क्योंकि यहां पे लाइट, इस लाइट सोर्स की लाइट यहां पे नहीं पहुंच पाई थी, तो यहां पे क्या बन गई, शैडो बन गई. यहां पे क्या बन गई, शैडो बन गई. एक बार स्टूडेंट्स इसे समझिए. हाउ डज लाइट फॉर्म शैडोज? दिस इज अ लाइट सोर्स emitting light rays, and we know that light rays if light rays are blocked by an opaque object, a shadow forms where the light cannot reach. So this is opaque object. इस opaque object ने क्या किया, इस लाइट सोर्स की लाइट को ब्लॉक कर लिया. ब्लॉक कर लिया, या तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा या इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है. सो अब यहां पे क्या है, नो लाइट. तो यहां पे क्या बनी, इस ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बन गई. क्या बन गई, शैडो बन गई. सो इस तरह से शैडोज बनती हैं. फॉर एग्जांपल ये सन है एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ए पर्सन एंड दिस पर्सन. फॉर एग्जांपल आवर बॉडी इज ए ओपेक ऑब्जेक्ट. हमारी बॉडी में लाइट रेज पास नहीं होती. सो वी आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो हम क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं. जब हमने लाइट को ब्लॉक कर लिया तो यहां पे क्या होगा, नो लाइट. तो यहां पे क्या बनेगी, हमारी शैडो बनेगी. क्या बनेगी, शैडो बनेगी. Next, if the light source is moved closer to the object, more light is blocked and a larger shadow is formed. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, अब आप देखते होंगे डेली लाइफ में लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है. डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन क्या है, सन पास आ रहा है कि सन दूर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अब लाइट सोर्स कहां पे आ गया है, लाइट सोर्स इस ओपेक ऑब्जेक्ट के नजदीक आ गया है. जब नजदीक आ गया है तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर लिया है, तो लेंथ ऑफ शैडो भी क्या हो गई है, पहले से इंक्रीज हो गई है. सो इफ द लाइट सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, मोर लाइट इज ब्लॉक्ड एंड लार्जर शैडो इज फॉर्म्ड. सो बाय दिस हाउ डज लाइट फॉर्म शैडोज. Next, types of reflection. First is specular reflection. Specular reflection occur if the stream of light rays, this is not a single light, these are the stream of light rays. These are the stream of light rays falls on the smooth surface. This is a smooth surface. This is not a rough surface. This is a smooth surface, smooth and shiny surface. So direction of light reflections goes to certain direction, because now in this case all light rays are reflections in certain fixed directions. So this type of reflection is called specular reflection. ये नहीं कोई reflected light किस तरफ जा रही है, कोई reflected ray किस तरफ जा रही है. और all reflected rays are move in a parallel paths. ये देखिए स्टूडेंट्स,
all reflected rays are in parallel paths. So this type of reflection is called specular reflection. For example, ये देखिए students, for example this is a river and this river reflect all light of sunlight in certain directions. So this type of reflection is called specular reflection because this surface acts like a smooth surface. So हमें क्लियर इमेज नजर आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे हमें क्लियर इमेज नजर आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शंस हुई हैं उन सब की रिफ्लेक्शंस की डायरेक्शन क्या है, एक फिक्स सर्टेन डायरेक्शंस है. ऑल रिफ्लेक्शंस आर इन पैरेलल पाथ्स. सो हमें क्लियर इमेज नजर आ रही है. नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Diffuse reflection occur if the stream of light rays, these are the stream of light rays, not a single light ray, stream of light rays fall on rough surface. Now this is not a flat surface, this is a rough surface, this is a rough surface, this is not a flat surface. So the stream of parallel rays which fall on the body will be reflected to every direction. अब किसी की कोई डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे की, किसी की रिफ्लेक्टेड रे की कोई डायरेक्शन है, किसी रिफ्लेक्टेड रे की कोई डायरेक्शन है. कोई भी रिफ्लेक्टेड रे किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही. सो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्लियर इमेज नजर नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या है, वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं कर रही हैं. तो हमें क्या नजर आ रहा है? क्लियर इमेज नजर नहीं आ रही है. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फर्स्ट, डायग्राम शोज ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन ए प्लेन मिरर. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? स्टूडेंट्स, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इज द surface of mirror is 40 degree. एंड हमें पता है स्टूडेंट टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री. टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री. अब ये 40 डिग्री है तो ये कितना बच गया? 90 माइनस 40. कितना आ गया 90 माइनस 40? 50 डिग्री. और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 50 डिग्री. सो आंसर इज 50 डिग्री. अगेन स्टूडेंट समझिए, दिस इज द नॉर्मल. Normal is perpendicular to the surface and angle made by normal and surface is 90 degree. This total angle is 90 degree. This total angle. And this angle is 40 degree. And this remaining angle is 90 minus 40 is equal to 50. And angle made by incident light and normal is called angle of incidence. And according to law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. So if angle of incidence is 50 degree, then angle of reflection is also 50 degree. Next is, a ray of light is reflected from the plane. This is the plane mirror. Again, first we draw here a normal. Now students, क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल मार्क बाय बी. ये वाला एंगल निकालना है स्टूडेंट्स हमने. तो हमने अभी क्या सीखा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना है? नॉर्मल और सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. और ये 10 डिग्री आ गया. अब ये बाकी हमारे पास कितना बचा? 80 डिग्री. एंड स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस इज 80 डिग्री. दिस इज आल्सो 80 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
and this total angle is again 90 degree, and total is 90 degree, and this, if this is 80 degree, then this is equal to 10 degree. So B, angle of B is 10 degree. Angle of B is 10 degree. Now what is angle of incidence? If total angle between the incident ray and the reflected ray is 70 degree, so we know that angle of incidence equal to angle of reflection, I is equal to R, and in the given, ये हमें given है क्वेश्चन में क्या given है? Angle between incident ray and reflected ray is equal to 70 degree, and according to law of reflection, angle of reflection is equal to angle of incidence, R is equal to I. Now I plus I is equal to 2I. 2I is equal to 70 degree and I is equal to 35 degree. So angle of incidence is 35 degree. So students, हमने क्या पढ़ा? Light is a form of energy that is a part of electromagnetic radiations, and जो एनर्जी है किसकी है? फोटॉन्स की, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ फोटॉन्स की. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो आंसर इज लाइट. Our eye detect light in RGB form, Vibgyor form, simple form of particular color, none of these. So students, हमने क्या पढ़ा था? हमें ऑलमोस्ट क्या नजर आता है? व्हाइट लाइट. एंड व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So our eye detect light in Vibgyor form. In Vibgyor form. So correct answer is B. So light can travel. एयर में भी ट्रैवल करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, वो भी हमें पता है. एंड बोथ एयर एंड वैक्यूम. तो करेक्ट आंसर इज बोथ एयर एंड वैक्यूम. लाइट ट्रेवल्स इन. स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट क्या थी? Motion of light is rectilinear propagation. Motion of light is rectilinear propagation. It means light travel in straight line. So correct option is straight line. So light travels in straight line. Straight line in which light travels is called. So straight line को हम क्या बोलते थे? Ray. Ray of light. This is the straight line path. And this is the arrow. Arrow shows that direction of light. Where the light travels, light किस तरफ ट्रेवल कर रही है, एरो वो शो करता था. एंड दिस इज कॉल्ड ए सिंगल रे ऑफ लाइट. दिस इज फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ लाइट. This is a source of light, and this source of light radiating light rays, and light rays travel in straight lines, and arrow shows their direction of propagation of light. So answer is ray. So students, हमने पढ़ा in vacuum light travels fastest with speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So again remember, light travels fastest in vacuum, travel with speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Next, velocity of light is maximum. ये भी हम पढ़ चुके हैं. Velocity of light is maximum in vacuum. In vacuum. These all other media other than vacuum. So light fastest travel in vacuum. Object that produce their own light. Student, जिन objects के पास अपनी light थी emit करने के लिए, उनको हम क्या बोलते थे? Luminous objects. क्या बोलते थे? Luminous objects. So luminous objects are those which emit its own light. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अपनी कोई लाइट नहीं होती थी. ये लाइट दूसरे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे. सो जो जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑल लाइट रेज आर पास थ्रू इट. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, लाइट रेज आर ब्लॉक्ड बाय इट and only reflect the light. So only luminous objects have their own light. And best example is sun. Sun has a light to emit, so that's why sun is an example of luminous object.
Stars also have light to emit. So stars are also luminous objects because they have own light to emit. Objects that do not produce their own light. स्टूडेंट जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती थी एमिट करने के लिए, उनको क्या बोलते थे हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वॉल, बुक, टेबल, इससे लाइट क्या होती है? इनकी अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती है, तो लाइट इनसे क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. मून, ये भी हम पढ़ चुके हैं. मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन मून हमें क्यों चमकता हुआ नजर आता है? वो सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती एमिट करने के लिए, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो दैट्स व्हाई मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Now butter paper is a transparent, translucent, opaque, luminous. बटर पेपर के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती तो वो नॉन लुमिनियस है. ये क्या? गलत. ओपेक, क्या वो अब्सॉर्ब कर लेता है सारी लाइट को? नो. ट्रांसपेरेंट, क्या वो सारी लाइट को पास होने देता है? नो. क्या? ट्रांसलूसेंट, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है. सो बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. मेटल्स, क्या मेटल्स लाइट को ट्रांसमिट करती हैं? नहीं. सो इसका मतलब क्या है? मेटल्स क्या करेंगे? मेटल आर ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट. सो मेटल्स ओनली क्या करेंगी? मेटल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि मेटल्स क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं. वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट नहीं करेंगे. सो मेटल्स आर, अभी हमने पढ़ा मेटल्स क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं. मेटल लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करती है. सरफेस दैट डजंट रिफ्लेक्ट लाइट, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ल्यूमिनियस. स्टूडेंट्स दिमाग में रखिए, ऑल सरफेसेस, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है, चाहे वो ओपेक है, चाहे वो नॉन ल्यूमिनियस है, ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट. रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट्स इस संसार में नजर आ रहे हैं. सो ऑल सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट, रादर दे आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ल्यूमिनियस. लेकिन क्वेश्चन क्या है? सर्फेसेस दैट डजंट रिफ्लेक्ट लाइट, वो सर्फेसेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, वो कौन सी सर्फेसेस हैं? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस में क्या होता है? लाइट क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती. सो आंसर इज ट्रांसपेरेंट. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. अभी हमने देखा, पढ़ा कि किसके कारण से हमें ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं? किसके कारण से? रिफ्लेक्शन के कारण से. सो जो लाइट रेज हमारी आई तक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वही लाइट और उसकी वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट्स क्या है? नजर आ रहे हैं. सो वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आंसर इज रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई एट द सेम प्लेन. तो यहां पे क्वेश्चन में लेकिन क्या कह रहा है? At different points? No. Incident ray, reflected ray and normal are point at a same point. For example, this is surface, this is incident ray, this is a reflected ray, and this is the normal, and this is a point. All incident ray, reflected ray and normal कहाँ पे coincide हो रहे हैं? किसी एक पॉइंट पे हो रहे हैं. सो ये क्या है? फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन.
वो कह रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे नहीं मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? एक सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। सो दिस इज द फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आंसर इज बी। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज अ डिफरेंट पॉइंट, नो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी गलत हो गया। The point on which ray touches the mirror is called critical point, ये भी गलत हो गया। The angle of reflection is equal to angle of incidence, yes, angle of incidence equal to angle of reflection. This is a law of reflection. So this statement is true statement. Next is the phenomenon by which incident light falling on a surface is sent back into the same medium. So this is the definition of रिफ्लेक्शन में क्या है? अगर लाइट एयर से आ रही है और किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकरा के वापस एयर में अगर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। सो आंसर इज रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। तो थैंक्स।